السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ اصلاح عقیدہ کی یہ ہماری دوسری کلاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کو جان کر اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب. مؤلف رحمہ اللہ جمیل زینو رحمہ اللہ نے ہیڈنگ باندھی، عنوان دیا بندوں پر اللہ کے حقوق، اور اس کے تحت کچھ سوالات ذکر کر رہے ہیں. ان سوالات اور جوابات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. طریقہ یہ ہوگا ہمارا کہ سب سے پہلے میں سوال پڑھوں گا، پھر اس کے بعد مکمل طور پر جواب پڑھوں گا، اور پھر اس سوال کے جواب کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہی ہمارا طریقہ رہے گا. تو سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی خالص عبادت کی جس میں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. فرمان الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سب سے پہلے سوال میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے جنوں اور انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. عبادت کے کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ تمام جنوں اور انسانوں کا اصل مقصد ہے. اس بات کے لیے قرآن مجید کی آیت انہوں نے ذکر کی دلیل کے طور پہ، پروف کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تمام کے تمام جنوں اور انسانوں کو محض میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین کے سے مختلف تفسیریں آئی ہیں، اور وہ تمام کی تمام تفسیریں اس آیت کے اندر شامل ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر یہ کہتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تفسیر صنعانی میں یہ تفسیر موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الا لیقروا
या लियुक़िर्रू ली बिलइबादति तौअन औ करहा। यानी कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने जिनों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लियअबुदून, जो कुरान मजीद में लियअबुदून का लफ्ज है, उसकी तफसीर करते हुए इब्न अब्बास कहते हैं ताकि लोग चाहते हुए और न चाहते हुए दोनों सूरतों में मेरी इबादत का इकरार करें। यह पहली तफसीर है। तफसीर का खुलासा यह है इब्न अब्बास की कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि तमाम जिन्नात और इंसान इस बात का इकरार करें कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत का मुस्तहिक है, उसके सिवा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। इस बात का वो इकरार करें, अपने दिल से भी उसको माने, अपनी जबान से भी उसका इकरार करें। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में ये बात कहते हैं, लिआमुरहुम अन यअबुदूनी व अदऊहुम इला इबादती। इमाम शनक़ीती रहमहुल्लाह ने अज़वाउल बयान में इसकी तफसीर नकल की है अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जिनों और इंसानों को इस बात का हुक्म दे कि वो सिर्फ उसी की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर का मफहूम यह है कि तमाम जिन्नात और इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। अब इन दो तफसीरों की रोशनी में कुरान मजीद की आयत के मफहूम को हमको जानना है। देखिए, तमाम जिनों और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यही असल मकसद है। अब ये इबादत कैसे सही होगी? यानी अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का दावा करे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा हूं, तो किताब और सुन्नत की रोशनी में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला कब शुमार होगा? तो इस आयत की जो तफसीरें मैंने नकल की हैं उसकी रोशनी में अगर दो चीजें पाई जाती हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकी इबादत करने वाला बंदा शुमार होगा। अगर उन दो चीजों में से कोई भी चीज ना हो तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला बंदा शुमार नहीं होगा। सबसे पहली चीज ये है कि बंदा चाहे जिनों में हो या इंसानों में हो, वो इस बात का इकरार करे अपने दिल से और अपनी जबान से कि इस कायनात में इबादत की अगर कोई मुस्तहिक जात है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी इबादत की मुस्तहिक जात नहीं है, चाहे वो फरिश्ते हों, अंबिया हों, औलिया हों, शुहदा हों, सालिहीन हों और पत्थर हों, दरख्त हों, यानी जिन फरिश्तों की या फिर काहिनों की, जादूगरों की, अंबिया की, सालिहीन की, शुहदा की, पत्थरों की, दरख्तों की, जानवरों की, जिस चीज को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर पूजा जा रहा है वो तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम इबादत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। ये आदमी अपनी जबान से इकरार करेगा और दिल से उसको मानेगा। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि वो इस बात का इकरार कर लेने के बाद जबान और दिल से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, नमाज अल्लाह के लिए अदा करेगा, कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए देगा, नजर व नियाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही मानेगा, मुश्किलात के वक्त, परेशानियों के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगेगा। इबादत की जितनी भी किस्में हैं उसका जिक्र आगे आ रहा है, उन तमाम किस्मों को वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करेगा और अल्लाह की इबादत को अंजाम देगा। अगर कोई बंदा
चाहे जिनों में हो या इंसानों में हो, अपने दिल और जबान से इकरार तो करता है कि अल्लाह ही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तौर पर इबादत नहीं करता, वो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, या फिर ये है कि कुछ इबादतें अल्लाह के लिए अंजाम देता, कुछ इबादतें गैरुल्लाह के लिए भी अंजाम दे देता, दोनों को मिक्स कर देता। तो ऐसा शख्स हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इबादत का ये जो है आबिद नहीं कहलाएगा, इबादत करने वाला शुमार नहीं कहलाएगा। तो इस तफसील की रोशनी में आप अपने जिंदगी के मकसद को समझें कि जिंदगी जिनों और इंसानों को पैदा करने का असल मकसद यही दो चीजें हैं। नंबर एक, अपनी जबान और दिल से इकरार करे कि अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा जिनको भी पूजा जा रहा है वो इबादत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह की इबादत को अंजाम दे, अल्लाह की इबादत को बजा लाए। ये दो चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसकी तफसीर में इमाम कल्बी रहमहुल्लाह ने, मुफस्सिर कुरान ने, यह तफसीर जिक्र की, इल्ला लियुवहिदून, इल्ला लियुवहिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मुवहिद बन जाएं, तौहीद को अपनाएं। तौहीद की 3 किस्में हैं जिसका जिक्र इंशाअल्लाह अगली क्लासों में आएगा, लेकिन यहां तौहीद इबादत का जिक्र करना मकसद है। इमाम कल्बी की जो तफसीर है उस तफसीर में तौहीदुल इबादा यानी उलूहियत की तौहीद मुराद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिनों और इंसानों को तौहीद उलूहियत के खातिर पैदा फरमाया है। तौहीद उलूहियत क्या है? वही चीज जो मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। तो ये बुनियादी तौर से उस आयत की तफसीर मैंने जिक्र की। उसके बाद जमील ज़ैनी रहमहुल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल फरमाई, तो सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। दरअसल सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पीछे सवार कर लेते हैं और सवाल करते हैं मुआज बिन जबल से, ऐ मुआज, क्या तुम जानते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर क्या है? मुआज बिन जबल कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। इस हदीस में 2 बातें बुनियादी तौर से बताई गई हैं जो कि जिनों और इंसानों की पैदा करने का असल मकसद है। वो 2 चीजें क्या हैं? नंबर 1, अय्यअबुदू, अल्लाह ही की इबादत करें, और नंबर 2, वला युशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। किसमें? इबादत में। इबादत में किसी को शरीक ना करें। यही 2 चीजें जिंदगी का खुलासा है, जिंदगी का मकसद है। यहां असल मुसलमानों को समझने की जरूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस 2 बातें बताती हैं जिंदगी के मकसद में, एक अल्लाह की इबादत, दूसरा शिर्क से बचना। अब अगर कोई मुसलमान अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, यानी जबान से इकरार कर रहा है कि अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, सारी इबादतों को अंजाम दे रहा है, वो तहज्जुद पढ़ रहा है, वो तहज्जुद है, सब कुछ इबादतें ठीक ठाक अंदाज से वो अदा कर रहा है, लेकिन वला युशरिकू बिही शैआ पे अमल नहीं कर रहा है। वला युशरिकू बिही शैआ का मतलब ये है कि शिरक ना करे। अब बंदा इबादतें तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ
इबादतों को गैरुल्लाह के लिए भी अंजाम दे रहा है, अल्लाह के लिए भी अंजाम दे रहा है, गैरुल्लाह के लिए भी अंजाम दे रहा है। यानी जब ईद उल अजहा का मौका आता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर जानवर को ज़बाह कर रहा है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का नाम लेकर। कोई ईद या कोई भी चीज, क्या कोई भी महीना, कोई भी तारीख आती है तो वो किसी मरे हुए शख्स के लिए, अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह या दीगर औलिया के लिए जानवर को ज़बाह कर रहा है। और जानवर को ज़बाह करने की इबादत वो अल्लाह के लिए भी अदा कर रहा है, गैरुल्लाह के लिए भी अदा कर रहा है। तो क्या हुआ कि अय्यअबुदूहु पर तो अमल कर रहा है वो, वला युशरिकू बिही शैआ पे अमल नहीं कर रहा है। अब वो जिंदगी का जो असल मकसद है उसको उसने समझा ही नहीं है। तो जिंदगी का असल मकसद दो चीजें हैं, अल्लाह की इबादत करना है और साथ में इस इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। और यहां गौर करने की बात है, हदीस में कहा किसी भी चीज को शरीक ना करे इबादत में अल्लाह के साथ, किसी भी चीज को। शैअन नकीरा है, उमूम पर दलालत करता है। मतलब यह है किसी भी चीज को, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो सालिहीन हो, चाहे वो पत्थर हो, दरख्त हो, जानवर हो, चांद हो, सितारे हो, सूरज हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, किसी भी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक ना करे अल्लाह के साथ। तो यही दो चीजें इंसान की जिंदगी का असल मकसद है कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। ये मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत और अहादीस की मुख्तसर शरह आपके सामने जिक्र की है। अभी यहां मैं कुछ बातें आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि कुरान मजीद की आयत ये बताती है कि जिंदगी का असल मकसद तौहीद है, इबादत है, अल्लाह के साथ शिरक न करना है। लेकिन मुआशरे के अंदर, मैदान के अंदर आप देखेंगे कुछ तंजीमें, कुछ तहरीकें, कुछ जमातें ये दावा करती हैं कि जिंदगी का असल मकसद हुकूमत कायम करना, गलबा हासिल करना, गैर मुसलमानों पे हुकूमत कायम करना, ये असल मकसद है। और उनका ये मानना है कि इस हुकूमत को हासिल करने के लिए अगर शिर्क भी करना पड़े तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर बिदात करना पड़े तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये उनका दावा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपना असल मकसद क्या बना लिया? हुकूमत कायम करना, हुकूमत करना लोगों पे, ये असल मकसद बना लिया। अब ये असल मकसद जब बना लिया तो तौहीद को उन्होंने सेकेंडरी दर्जा दे दिया। अब तौहीद पर अमल हो या ना हो उससे कोई सरोकार नहीं है। असल मकसद क्या है? हुकूमत कायम करना। अब इस हुकूमत को जब असल मकसद बना लिया तो कहां उन्होंने बड़ी गलती की? तौहीद को उन्होंने मामूली समझ लिया और हुकूमत कायम करने के रास्ते में अगर तौहीद की कुर्बानी देनी पड़े, शिर्क को अपनाना पड़े, शिर्क से समझौता करना पड़े तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये कुछ जमातों, तहरीकों और तंजीमों की ये फिक्र है। और ये फिक्र दरअसल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान मजीद की आयत के सरासर खिलाफ है। अल्लाह ताला तो यहां ये बता रहा है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हुकूमत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने यहां पे? बिल्कुल नहीं किया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह तौर पे बता रही है कि अल्लाह की इबादत करना असल मकसद है, शिर्क से बचना असल मकसद है। तो ये जो फिक्र पाई जा रही है, ये फिक्र लोगों में फैलाई जाती है और ये एक गलत शोशा छोड़ा जाता है लोगों में। ये बताया जाता है कि भाई अगर हम हुकूमत कायम करेंगे तो तब चलकर हम तौहीद को फैलाएंगे, तब चलकर हम आसानी से तौहीद पर अमल करेंगे। अब ये आपको सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, बात तो सही लग रही है ना? पहले हम अपनी हुकूमत और ताकत कायम कर लेंगे, बाद में तौहीद पर अमल करना आसान हो जाएगा। ये हमको बज़ाहिर अच्छी लगती है बात, लेकिन ये कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप पढ़ेंगे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आपकी जिंदगी के सरासर खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत अता नहीं फरमाई थी, लेकिन आप क्या करते थे वहां पे? हुकूमत के लिए दौड़ते थे क्या? हुकूमत कायम करने के लिए लोगों की जहन साजी कर रहे थे क्या? ये बोलते हुए कि जब पहले हम लोग कुफार और मुशरिकीन पर हुकूमत कायम कर लेंगे, बाद में हम तौहीद की दावत देंगे, हम जो है इबादत की तरफ लोगों को बुलाएंगे। बात की बात करते थे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल नहीं। आप पढ़िए मक्के की 13 साला जिंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 13 साला जिंदगी में तौहीद की दावत देते रहे, जुल्म को बर्दाश्त कर लिया। उस जुल्म की वजह से सहाबा इकराम से नबी ने यह नहीं कहा कि ये सब बंद कर दो, अभी इबादत की तरफ बुलाना, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना बंद कर दो, पहले हम ये प्लानिंग करेंगे कि कैसे कुफार और मुशरिकीन पर हम हुकूमत कायम कर लें। ये बात मिलेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में? बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। 13 साला जिंदगी नबी की सिर्फ तौहीद की दावत पे गुजर गई, तौहीद की तरफ बुलाते रहे, इबादत की तरफ बुलाते रहे, यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऑफर किया कि अगर आप इस दावत को रोक देंगे, हम आपको मक्के की हुकूमत दे देंगे, मक्के का सरदार बना लेंगे हम, आप सरदार रहेंगे, आप हमारे हाकिम रहेंगे, अमीर रहेंगे, बस शर्त यह है कि आप हमारे जो माबूदाने बातिला को छोड़ने की दावत देते हैं उसको आप बंद कर दें, अल्लाह की इबादत की तरफ तो जो बुला रहे हैं आप बंद कर दें। ये कुफार और मुशरिकीन ने पेशकश की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया था क्या उसको? नहीं माना था। नबी ने कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म मिला है, ये तो मैं करूंगा, चाहे मुझे आप सरदार बनाओ या ना बनाओ, वो मेरे लिए अहम ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 13 साल मक्की जिंदगी में तौहीद की दावत देते रहे। मदीना आने के बाद भी आपने दावत तौहीद को फैलाया अपनी मौत तक। ये बुनियादी मसला है, इस मसले को आप जहन में रखें। ये जो गलत फिक्र लोगों के अंदर जो है आम की जाती है, सरासर किताब और सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ है, बल्कि पूरे अंबिया के खिलाफ है, पूरे अंबिया के खिलाफ ये फिक्र है। एक अहम बात इस सवाल के जवाब से मुताल्लिक मैं आपके सामने रख दूं, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसकी तौहीद और शिर्क के सिलसिले में समझौता करना हराम है, जायज नहीं है, इसमें किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो इस्लाम कबूल किए तो उनकी मां काफिरा थी, और जब बेटा इस्लाम कबूल कर लिया तो मां ने कहा कि ऐ साद, अगर तुम तौहीद को नहीं छोड़ोगे, शिर्क को नहीं अपनाओगे, तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, मैं धूप में बैठूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मैं मर जाऊंगी वैसे ही। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ऐसा ऐसा बोल रही है, मैं अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, एक तरफ ये तौहीद का रिश्ता है, अल्लाह की इबादत का रिश्ता है, दूसरी तरफ मेरी माँ का रिश्ता है, किस रिश्ते को मैं अपना लूं, किस रिश्ते की मैं कुर्बानी दे दूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरी जिंदगी में आया है, मैं क्या करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। अल्लाह ताला ने आसमानों से वही को नाजिल फरमाया। क्या वही थी? अल्लाह ने फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर ये वालिदैन तुम्हें शिर्क करने पर उभारे तो तुम हरगिज हरगिज उनकी बात ना मानो, उनसे समझौता ना करो। हाँ, दुनिया के मामले में उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन शिर्क का अगर वो हुक्म देते हैं तो उनसे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता। जब ये आयत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों में पड़ी तो साद बिन अबी वक्कास अपनी मां के पास चले गए, कहने लगे, मां, तुम एक जान की कुर्बानी देने की बात कर रही हो, अगर 100 जान भी तुम इस तरह हलाक को बर्बाद कर दो तब भी मैं अकीदे तौहीद को नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे से मैं कंप्रोमाइज और समझौता नहीं कर सकता। ये कुरान मजीद की आयत, ये सहाबा इकराम का तरीक़ेकार हमें ये बताता है कि अकीदे तौहीद और शिर्क के मामले में किसी से समझौता नहीं हो सकता। शिर्क शिर्क है, तौहीद तौहीद है। शिर्क का रास्ता जहन्नम का रास्ता है, तौहीद का रास्ता जन्नत का रास्ता है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा हम दुनिया के किसी मफाद के खातिर, दुनिया के किसी भी मकसद को सामने रखकर या हुकूमत के मकसद को सामने रखकर हम कभी जो है शिर्क से समझौता
नहीं कर सकते। अगर समझौता करना जायज होता तो सबसे पहले इस बात के मुस्तहिक एक इंसान की मां होती, लेकिन मां के सिलसिले में ही ये बात आ गई कि मां की बात भी नहीं मानी जा सकती, मां से भी समझौता नहीं हो सकता, तो दुनिया के किसी भी शख्स से शिर्क के मामले में समझौता नहीं हो सकता। इस सवाल के जवाब के तहत मैं आखिरी चीज आपके सामने ये बताना चाहता हूं, आखिरी नहीं, आखिरी से पहले ये चीज मैं बताना चाहता हूं, इस उसूल को आप हमेशा याद रखें। हर वो तंजीम या तहरीक, जमात, शख्सियात जिनका असल मकसद अकीदे तौहीद ना हो, जो ये बताते हो लोगों को कि तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद हुकूमत है, तौहीद नहीं है, इबादत नहीं है, कोई भी तंजीम, कोई भी जमात, कोई भी इंसान, कोई भी तहरीक, अगर उनकी फिक्र और उनकी सोच ये है और लोगों को वो यही बताते हैं कि जिनों और इंसानों की जीने का असल मकसद हुकूमत है, तौहीद नहीं है, तौहीद सेकेंडरी चीज है, जान लो वो गुमराह जमात है, वो गुमराह तहरीक है, वो गुमराह शख्स है। कुरान मजीद की इस आयत और हदीस की रोशनी में जो पहले सवाल के जवाब में जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह ने नकल फरमाई है, और इनसे दूर रहने की जरूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के हक में पेशन गोई फरमाई थी कि क़यामत के करीब कुछ लोग आएंगे जो जहन्नम के दरवाजों पर बैठकर लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम फमन अजाबहुम इलैहा क़ज़फ़ूहु फ़ीहा। कुछ लोग आएंगे जहन्नम के दरवाजे पे बैठे हुए होंगे और वो अपने आप को दाई बोलेंगे। देखो प्यारे नबी ने हदीस में दुआत का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो दाई होंगे, यानी वो लोगों को ये बता रहे होंगे कि हम इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, हमारी बात मान लो, हम हमारी दावत, हमारी जो फिक्र है तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। जबकि प्यारे नबी ने फरमाया हकीकत में वो जहन्नम के दरवाजों पर बैठकर जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे, यानी उनकी दावत, अगरचे वो इस्लाम की दावत के नाम पे लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हकीकत में वो जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। फमन अजाबहुम इलैहा क़ज़फ़ूहु फ़ीहा, अगर कोई भी आदमी उनकी बात पर लब्बैक कह देगा, उनकी बात मान लेगा, तो वो उसको जहन्नम में लेकर चले जाएंगे, जहन्नम में लेकर जो है दाखिल हो जाएंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई। सहाबा इकराम ने पूछा ऐसे वक्त में हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लो, उनके इमाम को लाजिम पकड़ लो। यहां मुसलमानों की जमात का जिक्र किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलमानों की जमात से मुराद वो जमात जो कुरान और हदीस और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तरीके पर चलने वाली जो जमात है, वो हकीकी मुसलमानों की जमात है। इस जमात को अगर लाजिम पकड़ लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फ़िरक़तन कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। सहाबा ने पूछा वो कौन सी जमात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहिल यौम अस्हाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा कायम है, उस तरीके पर जो जमात होगी वही जमात जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रिवायत से रिवायत है, मशहूर रिवायत, आपने फरमाया, मैं यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। आपने फरमाया मेरे इस दुनिया से गुजर जाने के बाद दीन के सिलसिले में तुम बहुत सारा इख्तिलाफ देखोगे, यानी हर कोई आदमी ये दावा करेगा कि हक हमारे साथ है, हमारी पैरवी कर लो, हमारी जमात सही रास्ते पे है, हमारी जमात की पैरवी कर लो। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे फिरके आएंगे। तब ऐसी सूरत में कौन सी जमात सही है, जन्नत की तरफ ले जा रही है, कैसे पहचानेंगे आप? किस जमात के साथ आप रहेंगे तो जन्नत में जाएंगे? क्या तरीका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया। ऐसे फितनों के दौर में, ऐसे वक्त में मेरी सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ लो, सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और तरीके को लाजिम पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। अब देखिए इन तमाम अहादीस की रोशनी में ये बात तय हो जाती है
کہ कोई भी जमात, कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक कुरान और हदीस सहाबा कराम के खिलाफ अगर जा रही है तो वो गुमराह जमात है। और मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि कोई भी जमात और तहरीक और तंजीम के नजदीक अकीदे तौहीद को सेकेंडरी दर्जा हासिल है तो वो गुमराह जमात है, वो गुमराह जमात है, उससे दूर रहने की जरूरत है। आखिरी चीज इस सवाल के जवाब में मैं आपके सामने जिक्र कर दूं। देखिए, हक वाली जमात और गुमराह जमात के दरमियान फर्क करने की अलामत यह है कि जो हक पर कायम है वो जमात जो पहले सवाल के जवाब में जो कुरान मजीद की आयतें और हदीस मौजूद है उस पर अमल करने वाली होती है, और जो उस पर अमल करने वाली जमात है वो हक वाली जमात है। मैं दूसरे अल्फाज में आपको कहूं कि हक वाली जमात के पास अकीदे तौहीद को सबसे पहला दर्जा हासिल होता है और उसी के लिए वो मेहनत करते हैं, उसी के लिए वो जीते हैं, उसी के लिए वो मरते हैं, उसी को अपना मकसद बनाते हैं और उसी चीज को तफसील के साथ लोगों के सामने बयान करते हैं, खोल खोल कर अकीदे के मसले को बयान करते हैं, तौहीद को समझाते हैं, शिर्क से लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। ये अहले हक की अलामत है। अगर कोई जमात अकीदे तौहीद को पहला दर्जा देती है, उसी की को अहमियत देती है, तो वो अहले हक है, वो हक वाली जमात है। क्यों? क्योंकि वो कुरान मजीद का हुक्म यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का यही हुक्म है, और कुरान और हदीस में जो बातें बताई गई हैं वही हक है ना, ये तो हम सब मानते हैं। और गुमराह जमातों की अलामत यह है कि वो पहले नंबर पर तो अकीदे तौहीद को बयान नहीं करते, वो तौहीद को सेकेंडरी दर्जा देते हैं, या फिर तौहीद के मसाइल को बताते भी हैं तो बहुत मुख्तसर बताते हैं, तफसील में नहीं जाते, शॉर्ट में बता देते हैं, उसको अहमियत नहीं देते। ये गुमराह जमातों की अलामत है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर भी आप गुमराह जमातों और अहले हक जमात के दरमियान बआसानी फर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल हम जानेंगे। दूसरा सवाल, इबादत की तारीफ क्या है? जवाब में जमील ज़ैनो रहमहुल्लाह कहते हैं, इबादत उन तमाम अक़वाल व अफ़आल का नाम है जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाए, मसलन दुआ, नमाज और कुर्बानी वगैरह। फरमान इलाही है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है। ये सूरतुल अनआम की आयत नंबर 107 पर 3 है। हदीस नबवी है, अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़तुहु अलैहि। मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा कुर्ब, मेरी नजदीकी हासिल नहीं करता जो मुझे उन चीजों से ज्यादा महबूब हो जो मैंने उस पर फर्ज की हैं। यानी हदीस का मतलब यह है कि बंदा सबसे ज्यादा जिन कामों को अंजाम देकर अल्लाह से करीब होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयद करदा फराइज हैं, फर्ज जो इबादतें हैं, उन इबादतों को अंजाम देकर बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। ये जो हदीस है ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस कुदसी है ये। और हम दूसरे सवाल की मुख्तसर वजाहत आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जमील ज़ैनो रहमतुल्लाहि अलैह ने इबादत का जो मतलब बताया है वो इबादत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की तारीफ का उन्होंने यूं समझ लीजिए को खुलासा जिक्र किया। लेकिन मैं आपके सामने इबादत से मुताल्लिक कुछ अहम बातें जिक्र करने जा रहा हूं, इस तफसील को आप सामने समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, इबादत किसे कहते हैं? इबादत का माना और मतलब क्या है? अब हम इससे पहले क्या पढ़े, हमारी जिंदगी का असल मकसद इबादत करना है, अल्लाह ताला है, शिर्क नहीं करना है। अब सवाल यह है कि इबादत किसे बोलते हैं?
इबादत का मफहूम क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह सबसे पहले जिंदगी का मकसद वाज़ेह फरमाया कुरान और हदीस की रोशनी में, इबादत। अब ये बता रहे हैं कि इबादत किसको कहते हैं, इसका ताल्लुक पहले सवाल से जुड़ा हुआ है। देखिए, इबादत के दो माने आते हैं, इबादत के दो डिफिनेशन है, दो इबादत है, वही दो मानों के साथ इबादत का मुकम्मल माना तय होता है। इबादत का पहला माना क्या है, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में और शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने अल-क़ौलुल मुफीद में इबादत का पहला मफहूम बताते हुए कहा, अत-तज़ल्लुल अल-खुदू व-तज़ल्लुलु लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला बिफ़िअलि अवामिरिही वज्तिनाबी नवाहीही महब्बतन व तअज़ीमा। इबादत का पहला मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत और ताज़ीम और इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को बजा लाना। अवामिर का मतलब अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि ये करो ये करो ये करो, अल्लाह के अवामिर को, अल्लाह के ऑर्डर को बजा लाना। और अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है, ये मत करो ये मत करो ये मत करो, उससे रुक जाना। और अल्लाह के ऑर्डर को बजा लाते हुए अल्लाह की मना करदा चीजों से बचते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत हो, उससे डर हो और इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी हो। इसे क्या बोलते हैं, इबादत। ये इबादत का पहला मफहूम है, ये इबादत का पहला मफहूम है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने इसी को अपने नूनिया शेर में कहते हुए कहा, व इबादतुर रहमानि गायतु हुब्बिही मअ ज़ुल्लि आबिदिही क़ुतबानु व अलैहा फलकुल इबादति दाइरु मा दार हत्ता क़ामतिल क़ुतबानु। कहते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी है, इसके साथ अल्लाह के हुक्म को बजा लाना, उसकी मना करदा चीजों से रुकना, ये चक्की के दो पार्ट हैं। चक्की के जो पार्ट होते हैं ना, चक्की जो घुमाई जाती है, उधर एक पार्ट बनाया जाता है, इधर जो पार्ट बनाया जाता है, उसी से वो घुमाते हैं। अगर उनमें से कोई भी चीज नहीं है तो फिर वो चक्की का पार्ट घूमेगा नहीं। यही मिसाल है इबादत की, जब तक मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी हो, तो वो उसके साथ जो अल्लाह के ऑर्डर को बजा लाया जाता है, तब वो इबादत शुमार होगा। अगर आजिज़ी नहीं है, इनकिसारी नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो फिर वो इबादत शुमार नहीं होगी। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां जो बताया गया कि आजिज़ी व इनकिसारी के साथ, इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह की इबादत करना, इसके अंदर दुनिया की तमाम मखलूकात शामिल हो जाती है, हत्ता के कुफार और मुशरिकीन भी। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह उसूल सलासा की शरह में लिखते हैं, इबादत दो तरह की होती है, एक कौनी इबादत है, दूसरा शरई इबादत। कौनी इबादत का मतलब यह है कि इस कायनात में बसने वाली हर मखलूक, चाहे वो काफिर हो मुसलमान हो, चाहे वो चरिंद हो परिंद हो, कोई मखलूक क्यों ना हो, वो सब की सब एक तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आजिज़ी व इनकिसारी इख्तियार कर रही है, अल्लाह के सामने झुकी हुई है वो ऑलरेडी। कौनी इबादत है, इसके अंदर तमाम के तमाम लोग शामिल हो जाते हैं, यानी वो ना चाहते हुए भी अल्लाह के सामने झुक रहे, वो ना चाहते हुए भी, हालांकि उनका अकीदा नहीं है कि अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह ताला मौजूद नहीं अकीदा, लेकिन वो अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में कहीं ना कहीं अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, वो अल्लाह के सामने झुके हुए हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात से फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की दी हुई चीज से फायदा उठा रहे हैं। तो ये इस्तिरारी इबादत है, कौनी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि सूरे मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानि अबदा।
यानी आसमानों और जमीन में जो भी चीजें हैं वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए झुके हुए हैं, बंदे हैं वो। और दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम क़लीला। कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, तमाम के तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, गोया कि एक तरीके से वो अल्लाह की इबादत को अंजाम दे रही है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हमने अपने कानों से सुना जो हम खाना खा रहे थे वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद की गवाही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात का इकरार करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि हम खाना खाते हुए जो खाना हम खा रहे थे वो तस्बीह बयान कर रही थी। अल्लाहु अकबर। और यहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर नहीं बनाया गया था मस्जिद नबवी का, एक लकड़ी के सहारे आप खुतबा देते थे, लेकिन एक अंसारी औरत ने कहा कि हम आपके लिए मिंबर बना देंगे। नबी ने कहा ठीक है। तो मिंबर जब बना दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आप लाठी पकड़ना छोड़ दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया। तो हदीस में यह बात आई कि वो उस लाठी से रोने की आवाज आने लगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको रोता हुआ देखा तो उसको अपने सीने से लगा लिया। जब वो सीने से लग गई तो उसका रोना बंद हो गया। और अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मैं उसको नहीं थामता तो वो ऐसे ही रोती रहती, वो ऐसे ही रोती रहती वो। और बाज रिवायतों में इस बात का इशारा मिलता है कि वो क्यों रो रही थी, इसलिए कि वो अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा देते थे, प्यारे नबी की जबान से जो अल्लाह का जिक्र निकलता था, वो जिक्र को सुनकर वो रोती थी। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद की आयतें ये बताती हैं कायनात की हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, चाहे चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, पत्थर हो, दरख्त हो, तमाम चीजें। तो कुरान मजीद की इन आयतों की रोशनी में ये जो आजिजी वो इनकिसारी है, एक है मजबूरी वाली, यानी आदमी इकरार नहीं करता, जैसे कुफार और मुशरिकीन इकरार तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए झुके हुए हैं। और दूसरा आजिजी वो इनकिसारी है, वो इख्तियारी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे जो है अपने इख्तियार से मोहब्बत के साथ अंजाम दे रहे हैं, वो है मुसलमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अंजाम देते हैं इंतहाई आजिजी व इनकिसारी के साथ, तो ये मुसलमान है। तो गोया के ये जो इबादत का पहला मफहूम है, इसके अंदर अहले इल्म की तसरीहात की रोशनी में एक तो तमाम की तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की इबादत कर रही हैं, तज़ल्लुल यानी आजिज़ी वो इनकिसारी झुकी हुई है अल्लाह ताला के लिए, हत्ता कि इसमें काफिर भी है झुकने के मामले में, वो झुके हुए न चाहते हुए भी, अगरचे उनका अकीदा नहीं है लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए झुकी हुई है, जिसको शेख इब्न उथैमीन ने इबादत कौनिया में शुमार किया है। और ये इबादत कौनिया कामयाबी के लिए काफी नहीं है, इबादत शरइया होना चाहिए। दूसरी इबादत शरइया जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, और ये वही कर सकता है जिस आदमी के दिल में ईमान हो, जिस आदमी के दिल में ईमान हो। तो इबादत का पहला मफहूम है, इबादत का ये पहला मफहूम है। दूसरे इबादत का मफहूम वो है जिसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल उबूदिया में जिक्र किया, और मशहूर यही है लोगों के पास। वो है इबादत का दूसरा मफहूम, इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु मिनल अक़वालि वल अफ़आलि ज़ाहिरति वल बातिना। इबादत हर उस चीज का नाम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, जिसे अल्लाह राजी होता है, चाहे उसका ताल्लुक जाहिरी अक़वाल व अफ़आल से हो या उसका ताल्लुक बातिनी आमाल से हो, चाहे उसका ताल्लुक जाहिरी आमाल से हो या बातिनी आमाल से हो, इसको इबादत कहते हैं। देखिए, इबादत की ये दो डिफिनेशन है, ये दो मफहूम है। इन दो मफहूम के साथ इबादत का मुकम्मल माना तय होता है। पहला जो डिफिनेशन था, इंतहाई आजिजी व इनकिसारी के साथ मोहब्बत और ताजीम के साथ अल्लाह की इबादत करना, इसका ताल्लुक बंदे के काम से। ये कौन करता है? इंतहाई आजिजी कौन इख्तियार करता है? बंदा इख्तियार करता है। इबादत कौन करता है? बंदा करता है, इंसान करते हैं, जिन करते हैं। तो पहला जो डिफिनेशन था उसका ताल्लुक बंदे के काम से, बंदे के फेल से। इबादत का जो दूसरा डिफिनेशन है जिसको इब्न तैमिया ने जिक्र किया है, उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फेल से है, यानी अल्लाह पसंद करता है,
अल्लाह पसंद करता है। तो दूसरी जो डिफिनेशन है उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फेल से है, और पहला डिफिनेशन बंदे के फेल से। इबादत करने वाला बंदा है, और इस इबादत को पसंद करने वाला, राजी होने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। तो फिर इन दो डिफिनेशन को सामने रखने से ही इबादत का पूरा मफहूम तय होता है। इबादत से मुताल्लिक इस सवाल के जवाब में मैं आखिरी चीज बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, वो है इबादत की अक़साम, इबादत की किस्में। कितनी ही किस्में इबादत की। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने जो डिफिनेशन, जो मफहूम बताया है इबादत का, कि हर वो चीज जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, राजी होता है, चाहे उसका ताल्लुक इंसान के जाहिरी आमाल से हो या बातिनी आमाल से हो। ये जो डिफिनेशन जिक्र किया है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, इस डिफिनेशन की रोशनी में इबादत के 4 अक़साम हैं। इबादत की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। ये 4 किस्मों को आप जान लेंगे तो आप उसके बाद ये तय कर सकते हैं कि उन 4 किस्मों के अलावा इबादत की कोई और किस्म नहीं हो सकती। जितनी भी इबादतें हैं अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है, वो तमाम की तमाम इबादतें इसी में शामिल हो जाती हैं। वो 4 किस्में क्या हैं उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि इबादत की बुनियादी तौर से 2 किस्में हैं, उलमा ने जिक्र किया। एक इबादत महज़ा, दूसरा है इबादत गैर महज़ा। इबादत महज़ा का मतलब यह होता है कि हर वो चीज जिसका हुक्म और अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बाकायदा अल्लाह ने हुक्म दिया ये करो, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ये करो, तो वो इबादत है। जैसा कि अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज इबादत हो गई। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, ज़कात इबादत हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बानी करो, कुर्बानी इबादत हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो, हज इबादत हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया उम्रा करो, उम्रा इबादत हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करना इबादत। यानी इबादत महज़ा का मतलब हर कौल व फेल, एतकाद जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसको इबादत कहते हैं, इबादत महज़ा। अब इस इबादत की 4 किस्में हैं। इस इबादत की 4 किस्में हैं। नंबर 1, दिल से होने वाली इबादत। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक दिल से होता है, जैसे मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करता है बंदा, दिल से करता है कि ज़बान से करता है? दिल से करता है, मोहब्बत दिल में होती है। इसी तरीके से भरोसा करता है अल्लाह तबारक व तआला पर। अब ये कौन सी इबादत है? दिल से होने वाली इबादत है। इसी तरीके से अल्लाह की रजा के लिए इबादत को अंजाम देता है, इखलास, ये दिल में होता है। तो ये दिल से होने वाली इबादतें हैं, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जबान से होने वाली इबादतें। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो जबान से होती है, जैसे कुरान मजीद की तिलावत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना, किसी को भलाई की तरफ बुलाना, किसी को बुराई से रोकना, ये जबान से होती हैं इबादतें। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म अपने बदन से होने वाली इबादतें, अपने आज़ा और जवारे से होने वाली इबादतें। जैसे मिसाल के तौर पे आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ये बदन से होने वाली इबादतें, बदनी इबादतें, आज़ा और जवारे से। ये तीसरी किस्म है इबादत की। चौथी किस्म इबादत की माल से होने वाली। माल से भी आदमी अपनी इबादत को अंजाम देता है, यानी ज़कात अदा करना, सदका व खैरात करना, मिस्कीन को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, मस्जिदें तामीर करना, पैसा लगाना, हज और उम्रा करना। ये क्या है? ये माल से होने वाली इबादतें। तो ये इबादत की 4 किस्में हैं। एक दिल से होने वाली इबादत, दूसरा जबान से होने वाली इबादत, तीसरा अपने आज़ा और जवारे से होने वाली इबादत, चौथा माल से होने वाली इबादत। ये इबादत महज़ा की तफसील मैंने जिक्र किया। अब बुनियादी तौर पर इबादत की जो दूसरी किस्म मैंने जिक्र किया था, इबादत गैर महज़ा। इबादत गैर महज़ा का सादा सीधा मतलब मैं बता देता हूं आपको। देखिए, कुरान और हदीस में उसको इबादत के तौर पे जिक्र नहीं किया गया होता, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म नहीं दिया कि करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म नहीं दिया कि करो, नहीं, वो जायज काम होते हैं, जायज काम होते हैं।
वो इबादत नहीं होते फी नफ्सी ही, कुरान और हदीस में उसको इबादत नहीं बताया गया होता, वो जायज काम होते हैं। लेकिन इंसान के हुस्ने नीयत की वजह से, अच्छी नीयत की वजह से, अच्छे इरादे की वजह से वो चीज इबादत बन जाती है, उसको इबादत गैर महजा कहते हैं। मिसाल के तौर पे सोना जायज है क्या इबादत है? जो रात में आप सोते हैं वो क्या है? वो जायज है, उसको इबादत कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन एक आदमी रात में सोते हुए इस नीयत के साथ जल्द सो जाता है कि मैं उठूंगा तहज्जुद पढ़ूंगा, तो उसका ये जो रात में सोना भी है ना, उसके तहज्जुद की नीयत की वजह से इबादत बन जाता है। एक आदमी रात में सो रहा है, सिर्फ नींद की वजह से सो रहा है कि मैं अच्छी नींद करूं, जायज है उसके लिए, इबादत नहीं है उसके लिए। लेकिन रात में सोते हुए इस इरादे के साथ सो जाता है कि मैं जल्द उठूंगा, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करूंगा, उसका सोना भी उसकी अच्छी नीयत की वजह से इबादत हो गया। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी में उनका कौल, सही बुखारी नकल, इमाम बुखारी नकल किया। मुआज़ बिन जबल कहते हैं, इन्नी अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, जिस तरीके से मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर सवाब की उम्मीद रखता हूं अल्लाह ताला से, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपने सोने को भी इबादत समझता हूं, और सोने से भी अल्लाह तबारक व तआला से मैं सवाब की उम्मीद रखता हूं। कोई आदमी डॉक्टर पढ़ रहा है, डॉक्टरेट इल्म हासिल कर रहा है, MBBS डॉक्टर पढ़ रहा है, बस उसका मकसद यह है कि दुनिया हासिल करेंगे, दुनिया कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, जायज है उसके लिए, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन एक आदमी MBBS की तालीम इसलिए हासिल कर रहा है कि मैं डॉक्टर बनकर फ्री में इलाज करूंगा, मैं फ्री में इलाज करके गरीबों मिस्किनों की मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा मैं, मुसलमान गरीबों की, इस नीयत के साथ वो पढ़ता है, उसके पढ़ने की वजह से भी उसको अल्लाह ताला सवाब देता है। अगरचे कि वो इबादत नहीं था, वो तो दुनिया का इल्म था, इबादत नहीं था वो, लेकिन उसके हुस्न नीयत की वजह से वो चीज इबादत बन जाती है। इस सिलसिले में सही मुस्लिम की रिवायत दलील है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की, वफी बुद्इ अहदिकुम सदका, कहा कि लोगों तुम अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी करते हो ना, उसकी वजह से भी अल्लाह ताला सदक़े का सवाब दे देता है। सहाबा कराम को बात समझ में नहीं आई, कहा अल्लाह के नबी, वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए करता है, आदमी अपनी लज्जत पूरी करने के लिए करता है, उसमें सदक़े का सवाब कैसे मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ, अगर यही जरूरत, यही लज्जत जिना के तरीके से वो हासिल कर ले, क्या उस पर गुनाह नहीं लिखा जाता क्या? सहाबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के नबी, गुनाह लिखा जाएगा उस पर। आपने फरमाया बिल्कुल उसी तरीके से, वो सही तरीके से अगर वो अपनी फितरी जरूरत पूरी करता है तो उस पर भी अल्लाह ताला सदक़े का सवाब लिखता है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह इस हदीस की शरह में कहते हैं कि ये हदीस का टुकड़ा इस बात के लिए दलील है कि जायज काम जो होते हैं वो अगर अच्छे इरादे के साथ, हुस्न नीयत के साथ अंजाम दिए जाते हैं तो वो इबादत में कन्वर्ट हो जाते हैं, इबादत में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इबादत की दूसरी किस्म है, अगरचे फी नफ्सी वो इबादत नहीं होती, लेकिन हुस्न नीयत की वजह से इबादत बन जाती है। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्बईन नवविया की शरह में बड़ी प्यारी बात लिखी है। कहा, इबादत गैर महजा को जिक्र करने के बाद कहते हैं, इबादतु अहलिल गफला आदात व आदातु अहलिल यक़ज़ा इबादत। कहते हैं जो गफलत में पड़े हुए लोग होते हैं ना, ऐसे गाफिल लोगों की इबादतें आदतें बन जाती हैं, लेकिन जो चालाक किस्म के लोग होते हैं उनकी आदतें भी इबादतें बन जाती हैं। कहने का मतलब यह शेख इब्न उसैमीन का कि लोग कभी इबादतों को अंजाम देते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर इखलास नहीं है या फिर नबी का तरीका नहीं है, तो वो इबादतें उनके बेकार है, इबादत अंजाम देकर भी वो बेफायदा हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चालाक किस्म के लोग वो होते हैं जो जायज कामों को भी अच्छी नीयत के साथ अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आदमी शादी कर रहा है, उसका इरादा ये है कि शादी करके मैं बस शादी करूं, बस शादी करूं और शादी के जरिए जो फितरी जरूरत पूरी करना है करो, ठीक है, जायज है उसके लिए। लेकिन एक आदमी चालाक क्या करता है, शादी करते वक्त ये नियत कर लेता है कि मैं शादी इसलिए करूं क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, शादी मैं इसलिए करूंगा ताकि शादी करके मैं अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लूंगा, जिना की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं निगाहों की हिफाजत करूंगा, मैं उसके जरिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नस्ल को बढ़ाऊंगा।
یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ترغیب دلائی ہے اس چیز کی طرف. ان تمام اچھی نیتوں کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے نا, تو وہ شادی کرنا بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. تو اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ چالاک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسن نیت کی وجہ سے زندگی کے ہر جائز کاموں کو بھی عبادت میں کنورٹ کر لیتے ہیں, عبادت بنا لیتے ہیں. تو سبحان اللہ, میں عبادت کی یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. تو ویسے تو ہر دن کا ٹارگٹ ہمارا تقریباً 4 سے 5 سوالات ہمیں ختم کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ کل سے میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کچھ باتیں تھیں, 2 سوالات کے جواب کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کو جان کر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی عبادت کرنے اور شرک سے دور رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.